شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا اور بہت مہرباں ہے۔ کما ارسلنا، جس طرح تمہیں اس چیز کی فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تمہیں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیت سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ العروۃ الوثقی قرآن اکیڈمی میں تمام ناظرین آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیت کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ایک ایک ورڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کما، جیسا کہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فی یعنی میں، کم یعنی تم میں، رسولن ایک رسول، من یعنی سے، کم یعنی تم میں سے، یتلو، تلا یتلو پڑھنا، تلاوت کرنا، وہ پڑھتے ہیں، علیکم، علی یعنی پر، کم یعنی تم پر، آیاتنا ہمارے آیتیں، ہمارے حکم، وہ یزکیکم اور پاک کرتے ہیں، زکا یزکو یعنی پاک کرنا، یزکی پاک کرتے ہیں، یزکیکم وہ اور پاک کرتے ہیں تمہیں، وہ یعنی اور، یعلمو یعنی سکھانا، کم یعنی تم کو، یعنی اور سکھاتے ہیں تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وہ یعنی اور، یعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ماں یعنی جو، لم یعنی نہ، تکون تھے یعنی تم نہ تھے، تعلمون جانتے تھے۔ فذکرونی، فا یعنی سو، پس، سو یاد کرو، نی مجھ کو، مجھے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی اور تم شکر کرو میرا، وا یعنی اور، لا یعنی نہ، تکفرونی نہ شکری نہ کرو، نی یعنی میری، یا ایہا اے، الذین جو کہ، آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، انا یعنی بے شک، اللہ ان اللہ بے شک اللہ، مع یعنی ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ناظرین یہ ترجمہ ہم نے اس کا سنے، تلاوت بھی سیکھی سنی۔ یہ آیت ہی ہے، آیت نمبر 151، 152، 153۔ اس کے پہلے کی جو آیت ہی تھی، ربط آیت ان کا مطلب اس سے جو کانٹیکٹ ہے آیتوں کا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس میں تحویل قبلہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس آیتوں میں حکم کا بار بار تکرار کیا گیا ہے، ریپیٹیشن ہے، بار بار وہی آیتیں بتائی گئی ہیں اور حکمتیں اس کی بیان ہوئی ہے۔ پھر ایک بات اور آئی تھی کہ نیکی میں سبقت لے جانا، آگے بڑھنا، یہ بھی بات ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا۔
کہ मेहनत करनी है हमको, मेहनत में आगे बढ़ना है। मेहनत कहाँ लगाना है? नेकियों में आगे बढ़ने में लगाना है। ये तलकीन पहले आयतों में की गई थी। फिर तहवील किबला, यानी किबले की जो तहवील हुई थी, बदला गया था, शिफ्टिंग हुई थी, उसके ताल्लुक से भी उसकी भी तलकीन है, उस पर अमल करना है। और अल्लाह से डरने की भी तलकीन की गई थी। लाख लोग एतराज करे, कितने भी दूसरा एतराज करे, लेकिन कहा गया था, अल्लाह कह रहा है कि तुम लोगों से खौफ ना करो, बल्कि अल्लाह ही से डरो। ये तो हुए रब्ते आयत। आज की आयतों का हम इंशाल्लाह मुताला करते हैं। देखिए, हमने इससे पढ़ा पहले आयतों में पढ़ा था, पहले पारे में 129 आयत में। इसमें क्या था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर उस वक्त दुआ कर रहे हैं। दुआ की गई थी कि अल्लाह ताला इनके अंदर एक ऐसा इस उम्मत में ऐसा एक मतलब रसूल उठाइयो जो उनको उनके सामने तेरी किताब की तिलावत करे, उनका तस्किया करे, उन्हें हिकमत की बातें बताए। तो देखिए, उस वक्त जो दुआ की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, गोया के 151 आयत में जो आयतें आज अभी पढ़ी गई, उस दुआ की गोया के कबूलियत का ऐलान है। कितना साल लगा? तकरीबन 2500 साल लगा उन दुआ को कबूलियत में। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने भेजा, क्या भेजा? नबी को भेजा। कमा अरसलना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर भेजने की का ऐलान किया जा रहा है। और आपके यहाँ पर 4 बुनियादी फराइज बताए जा रहे हैं। जैसा कि हमने सूरह बकरा में 129 में पढ़ा था, अभी हम 151 में पढ़ रहे हैं, और सूरह इमरान में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और सूरह जुमा 2 नंबर की आयत में भी हम इसको पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बुनियादी फराइज 4 जगह पर कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। पहला देखिए, जो कहा गया कि वो ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने भेजा जिस तरह तुम्हें उस चीज की फला नसीब हुई कि हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम ही में से एक रसूल भेजा। अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे, इंसानों में ही से भेजे। क्यों? इसलिए कि वो हमारे लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। वो भी हमारे जैसे, उनको बशरी जरूरत होती है, खाना पीना, बच्चे और औरत, ये सब जो जरूरत उनको है, उसके साथ अल्लाह ताला के वो मासूम बंदे होते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने खास बंदों में से मुंतखब फरमाता है। तो देखिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम ही में से, तुम्हारे दरमियान में से ही एक रसूल भेजा। उनकी वो क्या काम करते हैं? जो तुम्हें मेरी आयत सुनाते हैं, है ना। अल्लाह के रसूल का पहला काम तिलावत आयत, यानी कुरान की आयत की तिलावत करना। दूसरा दूसरा काम क्या है? दूसरा यह है कि तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है। तिलावत करता, कुरान की तिलावत करके सुनाता है, फिर उन तालीम की आयत भी दे, आयतें जो सुनाई थी उसकी तशरीह भी करते हैं। फिर तीसरा काम, किताब की हिकमत, उसका जो विजडम है, उसमें जो हिकमतें हैं, वो भी बताता है। और चौथा जो काम है, वो तज़किया नफ्स, यानी तरबियत करता है, उन्हें संवारता है और उसकी तालीम देता है, जो बातें हम नहीं जानते थे, यानी जो चीजें नहीं पता थी, वो नबी का काम था, रसूल का काम था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि उस बात को अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया। कौन सी 4 बातें? तिलावत आयत, तालीम आयत, तालीम हिकमत, तज़किए नफ्स और तरबियत। तो कुरान के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों चीजें कर कर बता दी। अब हमारी उम्मत की जिम्मेदारी है कि इस क़याम को लेकर खड़े हो। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। देखिए, आयत नंबर 152, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो।
अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। देखिए ये अक्सर जुम्मा के खुतबे में अक्सर उलमा कराम पढ़ते हैं इस आयत को। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब देखिए हम कितना याद करते हैं। अगर हम याद करते हैं, अहले इल्म में बड़ी अच्छी बातें बताई इस ताल्लुक से कि हम अल्लाह को कितना याद करते हैं, तो ये पता चलेगा कि भाई अल्लाह भी हमें याद करता है। यानी अगर हमको हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी याद करे, अल्लाह ताला हमारा जिक्र करे, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा, अल्लाह की याद करना पड़ेगी। अल्लाह का अल्लाह को याद करना होगा ताकि अल्लाह ताला भी हमारी याद करे। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे तुम मेरा शुक्र करो, वशकुरूली, तुम मेरा शुक्र करो, वला तकफुरूनी, और ना शुक्री ना करो। दो चीजें हैं देखिए यहाँ पर इन आयत में, एक अल्लाह का जिक्र करना है और एक अल्लाह का शुक्र करना है। दोनों चीजें तकाजा किया जा रहा है हम बंदों से कि अल्लाह का जिक्र भी करना है और अल्लाह ताला की का शुक्र भी करना है। तो जिक्र किस तरह करेंगे? जामे तरीका अल्लाह ताला का नमाज है, इसके जरिए अल्लाह ताला का जिक्र किया जा सकता है। फिर दरूद शरीफ नमाज में हम पढ़ते हैं, दुआ है, इस्तिगफार है, इसके जरिए अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। फिर मसनून दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए कलेमात है। दूसरे अस्कार है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दिगर जो अस्कार है उसके जरिए अल्लाह की याद करना, ये अल्लाह का जिक्र है। शुक्र किस तरह करना है? शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी है उसका एहसास हम हमारे पास रहे। अल्लाह की नेमतें तो इतनी हैं कि हम उन्हें शुमार भी ना कर सकते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाइन ताउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुसूहा, तुम अगर अल्लाह के नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो उसे शुमार नहीं कर सकते। वाकई में हम तो शुमार तो बहुत दूर की बात है, हम उसका एहसास भी नहीं कर सकते, इतनी नेमतें अल्लाह ताला की है। बहरहाल अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी है हम अपने जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने वजूद से अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उन नेमतों को अल्लाह की इताअत में लगाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचाए। जैसा नेमत है अल्लाह की हमारे लिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी है, अल्लाह ने हमें कान दिए हैं, अल्लाह ने हमें सोचने समझने वाला जहन दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए, ये तो हमारे खुद अपनी अंदर की जो नेमतें हैं। तो अल्लाह का शुक्र इस तरह करें कि अल्लाह की नाफरमानी में इन चीजों का इस्तेमाल ना, बल्कि अल्लाह की इताअत में इन चीजों को लगाए। देखिए इंसान कमजोर है, हमको दुआ भी करते रहना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा आइन अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, कि अल्लाह तू हमारी मदद फरमा तेरा जिक्र करने पर, तेरा शुक्र अदा करने पर और तेरी बेहतरीन इबादत करने पर। अल्लाहुम्मा जअलनी लका ज़क्कारा व लका शक्कारा, या अल्लाह हमें तेरा बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बना दे, हमें तेरा बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला बना दे। इस तरीके से दुआ भी अल्लाह ताला से हमें करना चाहिए। देखिए आगे आयत है 123। ये आयत असल में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, गुज़िश्ता आयत में साबिका उम्मत बनी इसराइल से, उनसे ही, उनके ताल्लुक से ही गुफ्तगू की जा रही थी। अब देखिए यहाँ से गुफ्तगू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हो रही है, यानी उम्मत मोहम्मदिया से बराह रास्त यहाँ पर अल्लाह ताला मुखातब है, खिताब फरमा रहे हैं। और सबसे पहले खिताब हो रहा है, देखिए
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। ईमान वालों से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इस्ताइनू, मदद हासिल करो, बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या हुक्म दिया जा रहा है? सब्र के जरिए, नमाज के जरिए अल्लाह के मदद की हुसूल की तलकीन की जा रही, कि अल्लाह की मदद हासिल करना है नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। देखिए, आजमाइश आएगी, इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा, तो सब्र इस्तेकामत के जरिए हमें अल्लाह से मदद हासिल करना है, कि अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइश में, इम्तिहान में भी हमें क्या करे? इस्तेकामत के साथ रखे। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमें सब्र अता कर। तो सब्र के जरिए हमें उस काम पर इस्तेकामत, साबित कदमी नसीब होगी। तो देखिए, ये आयत बड़ी मशहूर है कि मदद जो हासिल करना है, दो चीजों से करना है, नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। अब देखिए, अल्लाह ताला बाकायदा हमसे खिताब कर रहे हैं और हमको जरूरत भी है। देखिए, अल्लाह की मदद और ताईद और नुसरत की जरूरत है, हम है कि नहीं? जरूरत, हर वक्त जरूरत है। तो हम इसमें अल्लाह से, अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं कि नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से अल्लाह की से मदद हासिल करना है। तो देखिए, क्यों? क्योंकि अब देखिए, शहादत की जिम्मेदारी अब हम पर है। जैसा हमने 143 आयत में क्या पढ़ा था, कि उस आयत में हमको हुक्म दिया गया था, एक तो उम्मत तब्दील हो गई थी, यानी इस उम्मत बनी इसराइल से लेकर इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमामत का दर्जा दिया गया था, और किबला शिफ्टिंग हो गई थी, किबले की शिफ्टिंग हो गई थी। अब देखिए, हमको ये काम करना है, लोगों के ऊपर शहादत का जो फरीजा है, शहादत अलन्नास का फरीजा अब हमको अदा करना है। तो जैसा कि वहां पर कहा गया था हमको पिछली आयतों में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बनेंगे, और तुम इंसानियत पर गवाह बनना है, कि अल्लाह के दीन के हमको गवाह बनना है कि हमने वो काम कर लिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो मदद इसी के हुसूल के लिए करना है, हम अल्लाह से मदद इसी के लिए मांगना है कि इस राह में तकलीफ भी आएगी, तो अल्लाह से हम सब्र से मदद मांगे, और ये जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हम नमाज के जरिए भी मदद मांगे। तो नमाज के जरिए, अल्लाह ताला की याद इलाही के जरिए हमारा ईमान बढ़ेगा, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा, अल्लाह के ताल्लुक में इजाफा होगा, और सब्र के जरिए हमको इस्तेकामत, साबित कदमी नसीब होगी। तो सब्र देखिए, कहते इसी को ना, हमने कई मर्तबा पढ़ा, सब्र कहते हैं जमा रहना, डटा रहना, दीन में आगे बढ़ना। और दीन में आगे कब बढ़ेंगे? हम जब इस्तेकामत के साथ डटे रहेंगे। तो यही दो चीज है, एक तो सब्र है, दूसरे नमाज है। सब्र के जरिए बंदा साबित कदम रहेगा और दीन में आगे बढ़ते जाएगा, और नमाज के जरिए देखिए अल्लाह की याद करेगा। नमाज पढ़ेगा तो सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह फातिहा में हम देखिए अल्लाह से हमद करते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं और हिदायत मांगते हैं। तो देखिए, इससे क्या होगा? ताल्लुक अल्लाह से बढ़ेगा, और फिर इसी के जरिए खौफ खुदा पैदा होगा। मसाइब पर, मुसीबतों पर सब्र करना और कुफरान नेमत से बचना। कुफरान नेमत यानी अल्लाह की नाशुक्री से बचना। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी नेमतें दी है, उसका हमें नाशुक्री नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगे देखिए, आगे क्या आया तो हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी है, जो सब्र करते हैं, मुसीबत पे डटे रहते हैं, इस्तेकामत से डटे रहते हैं, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते, तो अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दे रहा है, इनायात होगी उस पे, अल्लाह की रहमतें होगी, तो अल्लाह ताला की हिदायतें उनके लिए होगी। तो इसलिए देखिए, सब्र का मुजाहिरा करना है, और अल्लाह ताला से हमें इसके लिए मुस्तकिल उस पर मेहनत भी करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि नमाज जो है जामे तरी अक्ल है,
सब्र, मदद तलब करने के लिए, मदद तलब करने के लिए जामे तरीन शक्ल नमाज ही है। नमाज में क्योंकि तिलावत भी हो रही है, रुकू भी हो रहा है, सुजूद भी हो रहा है, कुरान भी पढ़ा जा रहा है ना। तो इससे जरिए अल्लाह ताला से मदद हासिल करना है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है मतलब अल्लाह की इनायतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की हिदायतें हैं, ये किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। सब्र जो करता है अल्लाह ताला की उनके साथ मदद भी होती है और अल्लाह की इनायत भी होती है, अल्लाह की हिदायत भी उनके साथ रहती है। अब देखिए सब्र के कई अकसाम होते हैं, कई किस्में हैं सब्र की। कुछ सब्र तो हमको इबादत पर करना पड़ता है, उसको अंजाम देने के लिए करना पड़ता है, हो रहा है कि नहीं। अब देखिए रमजान जो है कभी सर्दी में भी आते हैं, कभी शिद्दत की गर्मी में भी आते हैं, कभी बारिश में भी आते हैं, लेकिन हमें सब्र के साथ रोजे रखना है ना। नमाज पढ़नी है, चाहे वो सर्दियों में हो चाहे तकलीफ में हो। नहीं पढ़ सकते हैं बैठकर तो खड़े कर नहीं पढ़ सकते बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़े, लेकिन नमाज माफ नहीं है। नमाज नाजरीन एक ऐसी इबादत है जो किसी को माफ नहीं है ना। जैसा कि भाई जक़ात के लिए है कि निसाब को पहुंच जाए तो जक़ात फर्ज है, हज के लिए है कि उसके पास आने जाने का वहां पर उसके लिए खर्च हो, रास्ता अमन वाला हो, हाँ सेहत भी हो उसके पास, तो वो हज को जाएगा। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर एक के लिए फर्ज, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे देहात का रहने वाला हो चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबके लिए नमाज है। और नमाज बदनी इबादत, इबादत की दो किस्में हैं, एक बदनी इबादत और एक माली इबादत। बदनी इबादत यानी जिसमें जिस्म लगता हो, बदन लगता हो, और माली इबादत यानी जिसमें माल लगता हो। तो देखिए नमाज ये बदनी इबादत, रोजा ये भी बदनी इबादत, ज़कात ये माली इबादत है, माल लगता है उसमें ज़कात में, और हज ये दोनों भी लगता है, इसमें बदन की भी ताकत लगती है, बदनी भी इबादत है और माली भी इबादत है। माल भी लगता है और बदन की ताकत और कुव्वत ये भी इसके अंदर लगती है उसकी अदायगी में, हज की अदायगी में। तो देखिए इबादतें कुछ ऐसी होती हैं जिसपे सब्र करना पड़ता है, फिर कुछ अल्लाह की राह में भी हमको सब्र करना पड़ता है। अल्लाह की राह की दीन के लिए निकलेंगे तो हमें सब्र करना है, हिम्मत से काम लेना है। अब देखिए आज हम बैठे हैं रोजे की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। दिल चाह रहा होगा हमको आराम करे, लेकिन हम अल्लाह की राह में, कुरान की तालीम में, कुरान को सीखने में, कुरान की को सीखने और सिखाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बात की दलील है कि हम सब्र कर रहे हैं। तो देखिए कब कुछ जिस्मानी तौर पर सब्र करना पड़ता है, जैसे कि कोई बीमारी आ गई है ना, कांटा चुभ गया, तो यहाँ पर भी सब्र है। कभी माली तौर पर कभी माल नुकसान हो गया, वहां पर भी सब्र करना पड़ता है। तो सब्र जो कि हर जगह दरकार है। तो देखिए हमें अल्लाह से इसलिए सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए अल्लाह ताला से डटे रहने की, इस्तेकामत की, साबित कदमी की, ये दो जरिए से, नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से अल्लाह से मदद हासिल करनी है। तो देखिए उम्मत वाली जिम्मेदारी हमको अदा करनी है। कौन सी उम्मत वाली जिंदगी? कि हम और अमल के भी जरिए से और कौल के जरिए से इस जिम्मेदारी को पूरी करें, यानी हम एक नमूना बने, हमारे कैरेक्टर अच्छे हो, हमारे बातचीत का तरीका अच्छा हो, हमारी तर्ज जिंदगी अच्छी हो, ताकि हम दूसरों के लिए नमूना बनते जाए। जो हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ने हमको दी है दीन की इशाअत की, उसको हम अच्छी तरह से अदा कर सके। देखिए अब हम देखते हैं, हम अपना जायजा लेते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम नेकियों में आगे बढ़ने की मेहनत करते हैं? बढ़ते हैं हम? इसमें मेहनत करनी पड़ेगी।
एक दूसरे से आगे बढ़ना, कंपटीशन करना, नेकियों में मेहनत करना उसके अंदर। दूसरी बात ये, क्या हम दिल व जबान से और अमल से अल्लाह के जिक्र और शुक्र की कोशिश करते हैं? दिल से करते हैं हम शुक्र और जिक्र अल्लाह का, यानी अल्लाह की याद, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बेनेमती ततीमुस सॉलिहात, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो हम जुबान से, दिल से और अमल से अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करते हैं, यानी अल्लाह की जो नेमतें हमको मिली है उसका एहसास हमें है, ये हमें सोचना है। जुबान से अल्लाह का जिक्र करना है, शुक्र करना है अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, और पूरे वजूद से अल्लाह का शुक्र करना है कि हम अल्लाह की अपने किसी भी नेमत को और किसी भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की रजा के लिए उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए, दूसरी बात ये हम जायजा लेते हैं, क्या हमें यकीन है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है? अब जायजा लेना चाहिए हम अपना, क्या मुश्किलात में हमारा रवैया ऐसा ही होता है, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते ही, हाँ, क्या हम चीखते चिल्लाते हैं? नहीं, हमको जायजा लेना चाहिए कि हम मुश्किल के वक्त भी अल्लाह ही से, अल्लाह ही के सहारे को पकड़ ले, अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जह हो जाए, मुसीबत और परेशानी में हम अल्लाह ही की तरफ रुजू हो जाए, क्योंकि अल्लाह ही मदद करने वाला है। अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से रुजू होते रहे, और हम नेकियों में भी आगे बढ़े। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है, नमाज की क्यों तलकीन की गई, यानी नमाज के जरिए से क्यों मदद हासिल करना है? देखिए, सबसे पहली बात, नमाज अल्लाह की याद का जरिया है ना, नंबर एक, के नमाज के जरिए अल्लाह की याद होती है, अल्लाह से कांटेक्ट होता है, अल्लाह से रब्त होता है। और जब अल्लाह से रब्त होता है, नमाज पढ़ी जाती है, तो और उसमें सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उससे देखिए उसमें ईमानियात का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है, हाँ, और आखिरत का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है। तो उसके जरिए क्या होता है, हमारा ईमान में इजाफा होता है, और ईमान में जब इजाफा होता है तो हमें अल्लाह की राय हक में, अल्लाह की राह में मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। यह है, देखिए, नमाज की तरफ मुतवज्जह जो किया जा रहा है, इसकी एक वजह यह है कि हमारे ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। फिर वो बात आ जाती है, अस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, है ना। जब हम नमाज में अल्लाह की याद करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी याद करेगा। इसीलिए नमाज की तलकीन से मदद हासिल करने के लिए कहा गया है। और सब्र, सब्र से इसलिए कि सब्र के जरिए इंसान को साबित कदमी नसीब होती है, किसी काम की इस्तेकामत नसीब होती है, वो काम पर वो साबित कदमी से करता है, कोई भी हालात उसको उस काम से नहीं हटाते। इसीलिए कहा गया है कि सब्र से मदद हासिल करो। तो देखिए, ये चंद आयतें थी जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जुमा भी किया, मुख्तसर तशरीह की समझी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ पढ़ा, अल्लाह उसमें अगर कोई गलती हो गई है, अल्लाह उसको ज़हनों में से महव कर दे, और अल्लाह जो हक है उसको ज़हनों में मजबूत बिठा दे। आमीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।